everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this video we are going to talk about the most prestigious and the most decorated exam of the country, UPSC. And today we are starting the session with this orientation session on UPSC. There are many students who I know and they always ask me, sir, when will you start the session or the classes for the UPSC? And here I come with the session on UPSC with this foundational course. But this session is more dedicated for all the students who want to prepare for the UPSC Civil Services. One of the most prestigious exam, the exam of your dream, in which many students are motivated just by reading the names of UPSC. Some will say across the WhatsApp memes and other platform about IAS, IPS officers, IRS and IFOS, Indian Forest Services, along with the IFS, Indian Foreign Services. And there are many more posts you can get from this UPSC examination. The examination include the Group A services, that is the most important services of the nation, the Group A services post. Okay, so it is not just an exam where you will be tested with the number of questions. It is the exam where you are tested with the characters. You are tested, your skills will be tested, how much you have learned throughout your life. It is not just an exam, it is a process. And here I begin decoding the process in general. Okay, so we will now talk about in this orientation session about the UPSC, and I have given it a name of Arambh, that is the beginning of this UPSC session. Okay, so now first of all, when you have prepared yourself, that is in your mind that you are going to prepare for this UPSC examination. जब दिमाग में आपने बना लिया है कि UPSC की प्रिपरेशन करनी है, so you should come across the 3 questions. कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन करता है तो उसको पहले ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में फीड करना चाहिए. The 3 questions that you should begin with is how. Very simple question, how. The other one is what. And the third one is why. If you successfully able to answer this question, ये तीनों को अगर आप बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर है पिक्चर, then you are very good in terms of कि अब आपको पढ़ना क्या है और कैसे. ठीक है, so first of all we'll understand ये तीनों कंपोनेंट को समझना जरूरी है. How you will prepare for the examination, what strategy you will opt, how will you cover the syllabus of the examination, what modes of education or what modes of learning you want, so that you can prepare well for this examination. ठीक है, आप किस मोड में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हाउ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद व्हाट मतलब व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू डू. ठीक है, आपको पढ़ना क्या होगा, किस तरह से पढ़ना है, वो हाउ टेल्स यू किस तरह से, व्हाट टेल्स यू क्या पढ़ना है. बिकॉज इट इज़ अ एग्जाम, द प्रोसेस, द कंप्लीट प्रोसेस इज इटसेल्फ अ एग्जाम. तो कहीं ना कहीं उसका एक डेस्टिन क्या होता है, एक सर्कल है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है. देयर आर मेनी पर्सन दे विल से कि नहीं उसके बाहर भी बहुत कुछ, अंडर द स्काई एवरीथिंग इज यूपीएससी. नो, देयर इज अ डिफाइंड सर्कल कॉल्ड द सिलेबस, एंड इन दोज डिफाइंड सर्कल आपको अपने आप को सिंक करना है. यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ विद इन दैट सर्कल इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन. अदर वे राउंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट वो सर्कल कहाँ तक डिफाइन होगा वो भी हम देखेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज वाई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप हाउ एंड व्हाट से पहले आपका क्या आता है वाई. आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, वाई यूपीएससी. सो आई हैव मेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे कहा भी था ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों को मैं जान भी रहा हूँ. सो ठीक है, तो अगर हम वाई कंपोनेंट देखेंगे तो सबका वेरी करता है. होप सो द पर्सन 1 विल से, सर आई वांट टू क्लियर दिस यूपीएससी और वांट टू जॉइन द यूपीएससी बिकॉज आई वांट पावर इन माय हैंड. पावर चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ पावर यू वांट, द पावर दैट आपका इस एग्जाम को निकाल कर आता है. अदर विल से आई वांट द प्रेस्टीज और द सोशल. अब देखो सोसाइटी में आप सोसाइटी के एक लेयर पे हैं, देयर आर द क्राउड्स. ठीक है, क्राउड्स मतलब बहुत सारे लोग हैं, एंड दिस एग्जाम आपको उस क्राउड में एक बना देता है.
Among the hundreds, you will become the one. Even among the thousands, you will become the one. And believe me, among the 1 lakh, you will become the one. ये आपका इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आपकी सोशल प्रेस्टीज होती है, उसके लिए कुछ लोग आना चाहते हैं. Some are genuinely want to serve the nation. वो चाहते हैं कि हम क्या करें, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू मैनकाइंड एंड सर्विस टू द नेशन. तो उसके लिए भी कुछ लोग आना चाहते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे हैव सम प्लान्स that they want to revive the education system in India. They want to revive the something called the social evils को ख़त्म करना चाहते हैं. ठीक है. Some have their own things. जो कुछ लोग होते हैं मोटिवेटेड होते हैं किसी IAS ऑफिसर वगैरह को देखकर. ठीक है. तो अलग अलग होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, ये ड्रीम्स भी होते हैं. Among them, ये तो आपके नॉर्मल थे, कुछ ये भी होते हैं जिनके अंदर फैमिली प्रेशर से भी जो बनना चाहते हैं. ठीक है, कि पापा ने कहा था तो मुझे IAS बनना है. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या रीज़न है. यू हैव टू फाइंड योर ओन रीज़न, बट द रीज़न शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप उस एक रीज़न से अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं. देयर आर 100 रीज़न नॉट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट टू क्लियर द एग्जामिनेशन. देयर आर 100 रीजन्स, बट देयर शुड बी वन रीज़न दैट कीप्स यू मोटिवेटेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड कि मुझे निकालना ही है, मुझे करना ही है. यू हैव टू फाइंड दैट वन रीज़न. And every one of you have that reason. चाहे आप किसी भी फील्ड पे काम करते हैं, it doesn't matter you are preparing for the UPSC or the other examination, but you have to have one reason जो आपको पूरा करना है, and that will guide you for the ultimate success. ठीक है. तो अगर आप UPSC प्रिपेयर करना है तो आपके वो एक रीज़न जरूर होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बहुत पहले, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, ड्यूरिंग द स्कूल डेज. ठीक है. कुछ होते हैं बहुत लेट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर सीइंग द सोसाइटी कि ये सोसाइटी कैसी है, आफ्टर सीइंग ऑल द जॉब्स कि ये जॉब्स करने से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आफ्टर सीइंग ऑल द हर्डल्स, सब चीज़ देख लेते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं कि नो, बहुत हो गया, कुछ नहीं है, हम चलते हैं इस रास्ते पे. एंड अल्टीमेटली दे गेट एनलाइटेंड ऑन द पाथ ऑफ और द जर्नी ऑफ UPSC. दे गेट एनलाइटेंड. ठीक है. वो एकदम ऊपर चले जाता है उनका माइंड. पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एनलाइटनमेंट मिल जाती है. निर्वाण बोलते हैं इसको, बुद्धिज़्म में निर्वाण बोलते हैं. तो निर्वाण की प्राप्ति के समान क्या है आपका UPSC. ठीक है. अगर मनुष्य जीवन, अगर ह्यूमन लाइफ्स की बात करें तो उसमें आपका 3-4 फेसेस है, द 3 और 4 फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है. उसमें एक ब्रह्मचर्य है, एक गृहस्थ है, एक संन्यास है. ठीक है. सो अल्टीमेटली ये UPSC के एग्जाम पे आपको ये चारों फेस समझ आएंगे ये लाइफ के. अदर वे राउंड आप कुछ भी कर लो, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, बट आप उसको जियोगे क्योंकि वो डिफाइंड है, वो डेस्टिन्ड है. बट दिस एग्जाम्स कीप यू सिंक विद दोज 4 फेसेस ऑफ लाइफ, और आपको समझ भी आएगा कि हाँ ये था, ये था, ये था और ऐसा था. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम. सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है कि इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है. You get the knowledge regarding the human lives, you get knowledge regarding the animal welfares, you get knowledge regarding the world aspect, you get knowledge about the philosophical science. ठीक है, कि किस तरह से ये सारे के सारे चीज़ें इंक्लूडेड हैं. सो यू विल बिकम द एथिकली साउंड ह्यूमन बींग, यू विल बिकम द फिजिकल, आपका अगर फिजिकली देखेंगे तो यू कैन बी और यू विल बिकम द फिजिकली साउंड. बिकॉज अल्टीमेटली आप कितने भी पढ़ते पढ़ते मोटे हो जाएँ, कुछ हो जाएँ, एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम निकलेगा तो यू विल गो फॉर द ट्रेनिंग सेशन, एंड देयर वो तो आपको एकदम फिट कर देंगे. And being an IAS officer, being an IPS officer, you want to look good, na? So this is the part of this examination. So overall personality development is the part of this examination. ठीक है. तो आपको वो Y component is very strong. Y component निकालना होगा कि मुझे कैसी एक prestigious life जीनी, मुझे अपने लाइफ को किस तरह से एक वैल्यू देना है, how I want my life to be. ठीक है. और just preparing for the examination, you will get the answers about your life. Clearing it or not clearing it is the other aspect of the examination. But उसको प्रिपेयर करने से आपको समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर रखा क्या है, why I am in this earth. ठीक है. इस planet में क्यों हूँ. And I will say most of the people who clear the examination, उनको भी ये चीज़ पता होता है, और इवन जो नहीं भी कर रहे हैं, आपको लाइफ में एक चीज़ होनी चाहिए, एक छोटा सा मैसेज लेकर ही चलना. When you start that I will not leave this earth without my footprint on it. कहीं ना कहीं छोटा सा स्क्रैच मार के ही जाएंगे. ठीक है. अगर डाई होना होगा, जाना भी होगा ऊपर, तो हम एक छोटा सा स्क्रैच मार कर ही जाएंगे. एंड दैट स्क्रैच शुड बी, वो नहीं होता स्क्रैच कि आप ज़मीन को खोद रहे हैं. स्क्रैच इज आपका प्रेजेंस आपके जाने के बाद भी फील. दैट स्क्रैच और दैट इम्पैक्ट यू कैन हैव विद दिस एग्जामिनेशन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ, बहुत सारी चीज़ों पे आपका एक इम्पैक्ट दिखेगा
आप होंगे तब आप उस काम को करेंगे, उसके बाद भी आपका वो इम्पैक्ट दिखेगा। एंड इसके बाद आप बहुत सारे डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ you knowing the everything about the world, knowing yourself, about your family and about your society, ठीक है। तो ये तो एग्जामिनेशन में ही क्या है, why you prepare। तो देखो मैंने आपको इतने सारे एस्पेक्ट्स बताए कि why to prepare। इनमें से आपको क्या लगता है आपके लिए क्या सबसे साउंड है, आप क्यों करना चाहते हैं। You have to find this why component। why component मेरी तरफ से नहीं आ सकता ये चीज़, but you have to find this। so what you will do, एक डायरी ले लेना और कीप अ पेपर and just write why UPSC, and believe me if you write this answer for the 15-16 times, इसी क्वेश्चन को आप बार बार सोच रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, this would be the first question in your interview, why you want to join the civil services। you start with the why and you enter the interview with the why, और after selection you will say, जब आप खड़े होकर कहीं पर बताएंगे तो भी आप why ही बताएंगे कि मैं क्यों बना। So this why should be in your mind each and every time, हर समय होना चाहिए, time and again you should keep reminding why। क्योंकि आप किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा आप थिंकिंग पे अप्लाई करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। चाणक्य ने भी कहा था, नियति भी यही है, ठीक है। तो आप क्या होना चाहिए, जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। सो यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ, योर माइंड इंटैक्ट विद दिस वाई, आपका दिमाग पूरा का पूरा इस वाई कंपोनेंट पे होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर ये वाई कंपोनेंट आज ही आप आज जाएंगे, आज बैठेंगे, सोचेंगे। इट विल टेक टाइम, एक दिन में नहीं आता, ये टाइम लेता है, बट वंस यू आर डन कि हाँ अब तो मुझे समझ आ गया, वहाँ से फिर दोबारा उस वाई को चेंज नहीं करना। प्लीज़ हैव वन, सिर्फ एक, कम से कम एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों करना। आई डोंट वांट कि 10 रीज़न हो, 100 रीज़न लिखें, एक होना चाहिए, और उस रीज़न के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं। बिकॉज दिस एग्जाम इज़ एग्जाम ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वाई को काफ़ी अच्छे से करेंगे। ये तो एक जनरली बात थी। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट। व्हाट कंपोनेंट इज अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन। वाई इज अबाउट योरसेल्फ, कि आपको क्यों करना है। व्हाट इज अबाउट दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। व्हाट एंड इन व्हाट सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या समझना होगा, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट विल लीड्स यू टू द प्रोसेस। इफ यू लुक इनटू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम ही आपके क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और द सिलेबस विल से दैट दोज 3 पार्ट्स आर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। द टेस्ट ऑफ, आपने कितना वाइडनेस, प्रीलिम्स इज द टेस्ट ऑफ वाइडनेस, आपने कितने विड्थ को कवर किए, कितना ज़्यादा आपने पढ़ा है, कितने विड्थ को कवर किया है, और उसको आपने आपके दिमाग को क्या होना चाहिए, उस पर हिट कर पाए। अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, आपकी एप्टीट्यूड यहाँ पर टेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स द मेंस, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अबाउट द सिलेबस आई विल डील बाद में, लेकिन अभी इस वाले लेक्चर में सबको जनरल ब्रीफिंग कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। देन इन मेंस यू हैव टू गो फॉर द राइटिंग द थिंग्स यू नो। नोइंग द थिंग्स एक एस्पेक्ट है कि आपको आता है, आपको चीज़ें पता है, आप जाकर क्या कर रहे हैं उसको पहचान रहे हैं। देन सेकेंड इज आपको जो आता है आप उसको लिख रहे हैं। देन आपको जो आता है, द थिंग यू नो, यू आर टेलिंग टू द इंटरव्यू पैनल्स और टू द वर्ल्ड। दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, दिस इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग योर थिंग्स। सो फर्स्ट, ये 3 एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन के, और ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट को ही आपको सीखना होगा। इफ यू वांट टू क्लियर द यूपीएससी और यू वांट टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपको ये तीनों एस्पेक्ट को सीखना होगा। और ये तीनों एस्पेक्ट को अगर आप सिंक नहीं करते हैं तो 100% ये क्या होता है, आप किसी ना किसी स्टेज के बाद आप आउट हो जाते हैं या उस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट प्रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। और ये तीनों को प्रिपेयर करना इज़ नॉट जस्ट स्टडी,
ये तीनों को प्रिपेयर करना इज नॉट जस्ट स्टडी, कि आपने स्टडी कर लिया, बहुत स्टडी कर लिया, वो नहीं है आपका, इससे क्योंकि उससे आपका ये कंप्लीट नहीं होगा। दिस स्टडी शुड बी योर थिंकिंग बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ नॉट अ ब्लाइंड रीडिंग। ठीक है, आपका एस्पेक्ट क्या होता है स्टडी का? यू रीड समथिंग एंड यू राइट समथिंग। जो रीड किया उसको राइट कर दिया, बट दिस एग्जाम डिमांड्स द थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड द थिंकिंग ऑल्सो। बिटवीन द रीडिंग एंड राइटिंग यू हैव टू थिंक। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है पहले उसको सोचना है, एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग और वंस यू स्टार्ट रीडिंग, कुछ भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स और रीडिंग द लाइन्स से डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप कोई भी लाइन को पढ़ रहे हो, उस लाइन के बीच की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मतलब आपको उस लाइन की पूरी मीनिंग समझ आ रही है। दैट इज़ द थिंकिंग पार्ट। सो कहीं ना कहीं आपको क्या जनरेट करना होगा? थिंकिंग। और ये तीनों चीज़ एक सिंगल एस्पेक्ट में अगर इसको हम बोले एक साथ, सो दिस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, तो यूपीएससी इज मोर अबाउट द लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स। कुछ नया सीखते रहना है हमेशा। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टडी कि आपका पास एक डिफाइंड सिलेबस और उसको स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ कि आपको स्टडी करना है, उसको रिवाइज करना है टाइम एंड अगेन, पर उस रिवीजन को आपको एक नए नए पैटर्न्स लाने होंगे कि हाँ, फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट रीडिंग द बुक्स, सेकंड टाइम से आई एम जस्ट पुटिंग द अंडरलाइंस, थर्ड टाइम हमने नोट्स लिखा है, फिर नोट्स को क्रिएट किया, फोर्थ टाइम में आपको क्या लग रहा है कि नहीं फिर से रिवीजन करना, तो यू आर कमिंग विद द आंसर राइटिंग रिवीजन टेक्निक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होते हैं, उसको अडेप्ट करना होगा, एंड ऑल दैट कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड लर्निंग। एंड दिस लर्निंग, जब आपने स्टडी स्टार्ट किया थिंकिंग बेस्ड स्टडी, इट विल गिव्स यू द लर्निंग, एंड अल्टीमेटली द लर्निंग विल गिव यू द नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, एंड इस नॉलेज के बाद धीरे धीरे यू विल बिकम एन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल। नॉलेज विल लीड यू टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट विद द स्टडी, स्टडी विल गिव्स यू टू द लर्निंग, लर्निंग से आपका क्या मिलेगा? नॉलेज, नॉलेज से आप क्या होगा? एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस विल अल्टीमेटली लीड टू द विजडम। तो यूपीएससी की स्टडी यही विजडम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? निर्वाण। इन बुद्धिज्म यही विजडम है ना, जो आपको क्या है, आपको अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? राइट एंड रॉन्ग को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, सो लर्निंग एंड गेटिंग द नॉलेज, और यहाँ से आप अपने आप को टेस्टिफाई करके क्या होते हैं? सिलेक्शन तो ले लेते हैं। सिलेक्शन के बाद यू आर एक्सपीरियंसिंग द रियल वर्ल्ड, एंड इन द एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड अल्टीमेटली आपको हर चीज़ें समझ आती हैं, एंड यू विल गेट विजडम। ठीक है, सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ पॉलिसी मेकर। प्रिपेयर योरसेल्फ, योर स्किल सेट्स को आप अच्छा करें, अपने ब्रेन को अच्छा करें, अपने वर्क एथिक्स को बहुत अच्छा करें, बी डेडिकेटेड, बी परसिवरेंट, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? इस लर्निंग को आगे चलकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो आपको इस स्टेज तक यूपीएससी खत्म वहाँ नहीं होता, इस स्टेज पे जाकर खत्म होता, वहाँ पे जाकर। लेकिन उसके लिए ये जो पाथ है, दिस पाथ, जिस पाथ को हम बोलते हैं प्रिपरेशन, यही क्या आपका प्रिपरेशन। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर जब भी ये चीज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। वंस यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो आपको थिंकिंग को अप्लाई करना है। कभी भी किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, जर्नल बुक्स, ठीक है, तो उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन तीनों चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग, बिकॉज 1750 मार्क्स, अगर आप पूरा का पूरा यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे, सो जो मेंस है, क्योंकि कैलकुलेट तो लास्ट में मेंस ही होना है, सो बहुत बड़ा एस्पेक्ट डील कर जाएगा आपका आंसर राइटिंग। सो यू हैव टू प्रिपेयर आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से। राइटिंग टेक्निक्स शुड बी देयर। अभी हम बात करेंगे और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जब हम हाउ एस्पेक्ट में जाएंगे तब हम बात करेंगे। एंड इसके बाद क्या आपका? यू शुड लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर थिंग्स। आपने कुछ टॉपिक्स पे अगर आपको बात करने की बात हुई, दे विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो आपको एक लिस्ट ये होना चाहिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंड पे सिर्फ नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ राइटिंग पे नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन यू कैन कम्युनिकेट एज वेल। ठीक है, तो बहुत सारे ये एस्पेक्ट्स हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ों को आप क्या करेंगे? डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और जनरल चीज़ों पे। और भी कुछ जनरल चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि आपका प्रोसेस, एंड प्रोसेस इन्वॉल्व द 3 पार्ट, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वी हैव द डिफाइंड सिलेबस, यहाँ पर आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस के साथ हमको पढ़ना होगा। ठीक है, सो इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेबस।
एंड सिलेबस में आपको क्या करना होना चाहिए, फ्रीज अप्रोच, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज अप्रोच। एंड व्हाट इज दिस फ्रीज अप्रोच? फ्रीज अप्रोच कि आपको कितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को बार बार नहीं ये करना है कि अपने विड्थ को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बहुत पढ़ लिया। यू हैव टू फ्रीज योर कंटेंट ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ, ऑन टाइम उस चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ, उसका मल्टीपल रिविजन्स कर पाएँ। ठीक है, बहुत सारा आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि आप 10 किताब को एक बार पढ़ो। चल से एक ही किताब को क्या करना है, 10 बार पढ़ना है। बट कौन सी किताब को पढ़ना है, देन ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट तो समझ आ गया कि पढ़ना है, ये 3 एग्जामिनेशन का पार्ट है, सिलेबस से हमको सिंक होना है और सिलेबस से सिंक होकर ये सारी चीज़ों को सीखना है। पर कैसे, हाउ विल यू लर्न दिस थिंग, ये आप कैसे सीखेंगे? ठीक है, सो हाउ कंपोनेंट कम्स हियर, कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास तो ये चीज़ समझ आ गया कि हमको क्यों करना है और क्या करना है, पर कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है, एंड प्रिपरेशन विद गाइडेंस। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिलेबस को समझ रहे हैं, खुद ही आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाए, वहाँ उसको एनालिसिस किया, सब बताएंगे अभी आपको हाउ में। ठीक है, तो एक वो अप्रोच है। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत बिगनिंग से स्टार्ट किया। अदर वे राउंड दूसरा क्या है, प्रिपरेशन विद गाइडेंस, क्या आपने किसी के गाइडेंस के अंडर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि हाँ क्या करना है, क्या करना है, दैट पर्सन गाइड्स यू कि हाँ आप ये सारी चीज़ें करें, इस तरह से पढ़ें। समटाइम्स यू नीड कि मुझे ये चीज़ें जाननी है, आप ही बता दो, तो ही विल टीच यू। ठीक है, तो एक होता है प्रिपरेशन विद गाइडेंस, सो कॉल्ड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मोस्टली वही है। पर अदर वे अराउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर भी यू कैन हैव वन गाइड, आप एक गाइड बना के रखें, और ऐसा गाइड जो कि आपको बार बार पुश करे कि नहीं आपको इस चीज़ को करना है, जिसको खुद भी पता हो एग्ज़ाम के बारे में, एंड ही नो कि किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यू शुड हैव वन गाइड, अल्टीमेटली होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो आपको उसे पुश करे और साथ ही साथ आपको सही चीज़ भी बताए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको क्या कर रहा है, पुश किए जा रहे हैं, आपको एक अलग सपने में रखेंगे, तू तो आईएएस बनेगा, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, भरोसे में ही आप क्या कर रहे हैं, पढ़ना नहीं है तेरे को, तू बनेगा। बट ये नहीं हो सकता। द पर्सन शुड बी कि यू हैव द एबिलिटी, तेरे अंदर एबिलिटी है, बट प्लीज़ उस एबिलिटी को छोड़, उस एबिलिटी जितना है उसके हिसाब से अपने पोटेंशियल पे वर्क करना है। डोंट बी इन द सीट और बैक स्टेज कि यहाँ पर आपके माइंड में क्या चल रहा है कि नहीं मुझे तो बन नहीं जाऊँगा, तो नहीं बन पाओगे। मैं बन जाऊँगा क्योंकि उन्होंने कहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना ये भी कहा है, जो अल्टीमेट वही होता है गाइड। ठीक है, फेमस आप लोगों ने सुना होगा इंडियन हिस्ट्री, चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत स्टोरी सबने सुना ही होता है, जो प्रिपरेशन नहीं भी करते वो उनको ही पता होता है। तो चाणक्य ने वो मान रहे हैं नियति को कि आपकी नियति तुम क्या बनोगे, तुम राजा बनोगे, बट उस नियति को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को उन्होंने ट्रेनिंग कराई। ही ट्रेन चंद्रगुप्त वेल हर एक फील्ड चीज़ों पे, और चंद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया कि गुरुजी तो बोल रहे हैं कि मेरी नियति है तो मैं तो राजा बन ही जाऊँगा, उसने भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। जो भी चीज़ें ट्रेनिंग कराई गई उस सारे ट्रेनिंग को उन्होंने बहुत अच्छे से किया, एंड अल्टीमेटली ही बिकम द किंग। ठीक है, और एग्जाम ये वाला किंग के इक्वल ही है। गेटिंग द ओलंपिक मेडल इज इक्वल टू क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, उतना ही मेहनत है। ठीक है, और इस एग्जाम में कोई भी क्या नहीं होता, आपका कोई भी आपका रैंक 1 रैंक 2 तो आते हैं, लेकिन सब टॉपर कहलाते हैं, बिकॉज वो इक्विवेलेंट है। पोस्ट में वेरी बट यू ऑल आर द टॉपर्स। सो प्लीज़ मेक श्योर कि उस चीज़ को अगर पाना है तो उस मेहनत को भी वैसा ही करना होगा। सम डे आई वॉज रीडिंग अबाउट द उसेन बोल्ट, ही गेव द स्टेटमेंट जस्ट फॉर रनिंग द 9 सेकेंड 100 meters in 9 point some second I have run the entire 4 years of my life। उस 9 सेकेंड दौड़ने के लिए मैं करता 4 साल कंटिन्यू डेली आई वर्क एंड आई प्रैक्टिस फॉर अबाउट 8 to 9 hours। तो वो दिखने में तो ये ऐसा लगा कि उसेन बोल्ट आया 9 सेकंड में जीत गया ओलंपिक्स का मेडल, सारे मेडल जीत गए,
बट द अमाउंट ऑफ वर्क ही पुट इन बिफोर द ओलंपिक्स फॉर दोज ईयर्स वो नहीं दिखा। ठीक है, सो ये एग्ज़ाम भी ऐसा ही है, ये जो फेस होगा प्रिपरेशन का वो नहीं दिखेगा किसी को। एंड दे कीप पुशिंग, अरे यूपीएससी करने क्या है, ये कहने क्या है, ऑल द नेगेटिव थिंग्स कम्स इन योर माइंड, मेरे से होगा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हाउ ये जो आपका प्रिपरेशन है, यहीं पर आपका क्या होता है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स एंड सेल्फ क्वेश्चंस आते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। देयर आर अदर गुड कैंडिडेट्स, मेरे से भी ज़्यादा बेटर लोग हैं, ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, अरे पिछले साल 5 मेंस दे रखे हैं, वो भी देंगे एग्जामिनेशन। देन आप ये सारे क्वेश्चन पे जैसे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आप अपने आप को एग्जाम से आउट कर लेते हैं। मैंने इसलिए कहा आपके पास एक रीज़न होना चाहिए निकालने के लिए कि मेरे को तो करना है। देयर आर अदर पर्सन्स ना, ऐसे भी तो है ना जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालते हैं, जो सेकंड में निकालते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं निकालते हैं, बट वो किसी और फील्ड में काफ़ी एक्सेल करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा एस्पेक्ट है, बट जब आप करने आ रहे हैं तो आपको मन में एक ही चीज़ होना चाहिए कि ये तो मेरे को निकालना है, उसके बाद का नहीं सोचना है अभी। ठीक है, आप उसको निकालना है, बाकी हाँ आप जो भी आपको अंदर से रखना हो, कुछ और सोचते होंगे चलिए, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपके मन में और कुछ नहीं आना चाहिए, उस समय आना चाहिए कि हाँ मेरे को तो इसको करना है। ठीक है, और बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, कुछ अभी एक वेब सीरीज़ भी आया था, एंड देयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ प्लान बी। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू डील अबाउट द प्लान बी और प्लान ए, आई एम जस्ट हियर टू डील अबाउट द यूपीएससी, द अल्टीमेट प्लान। तो be sure you don't have the plan A and plan B, you have just one ultimate plan for the UPSC examination। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हाउ पे चलते हैं। सो देखिए, आप दोनों चीज़ में ही हेल्प करेगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, चाहे वो सेल्फ प्रिपरेशन करें और या प्रिपरेशन विद गाइडेंस करें। क्लियर है? सो अगर हम इस पे जाते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन पे जब आप फेज पे आते हैं तो यू शुड, आपको पहले तो आपने देखिए कुछ एबिलिटीज़ हैं, स्किल सेट्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो सब में आपको क्या रिक्वायर्ड है, स्किल सेट। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए अगर आप स्किल सेट्स की बात करेंगे, सो यू शुड हैव द स्किल ऑफ रीडिंग, बहुत अच्छे से आपको रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। देन आपके पास एक राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एंड एक आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन एबिलिटी। ठीक है, जो हमने ऊपर वर्ड पे बात किया था, तो ये एबिलिटीज तो आपके पास होनी चाहिए। पर जब इतना ही रिक्वायर्ड है तो सारे बच्चे एक साथ क्यों नहीं एग्जाम निकाल लेते? सो देखो यहाँ पर वेरिएशन क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझेंगे, और मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इससे आपको अपना लेवल समझ आएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, बस ये नहीं कि हाँ यूपीएससी का नाम सुनिए, इसका नाम सुनिए और चले गए एग्जाम देने और अपना क्या किया, पूरा 5 से 6 साल बर्बाद करके वापस आ गए। यू शुड नो योर लेवल वेल, और आपको समझ आना चाहिए कि मैं किस लेवल पे लाइक कर रहा हूँ, क्या यहाँ से मैं अपने आप को अपग्रेड करके उस चीज़ में पहुँच सकता हूँ। ठीक है, सो क्योंकि देखो कई बच्चों की स्कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द स्कूल लेवल, कई की स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, इन स्कूल दे आर नॉट जस्ट ब्लाइंड रीडिंग। ठीक है, जैसे मोस्टली स्कूल में क्या होता है, आप उठाते हैं, रीडिंग करा दिए, 4 आंसर लिखा दिया, आप आंसर को याद करके एग्जाम दे दिए, एंड यू आर हैविंग 98%, 97%, और आप घूम रहे मोहल्ले में बिल्कुल खुश होकर कि अरे मेरा तो 98% है। किसी दिन आपके स्कूल में ऐसे का एग्जाम हुआ, आपने ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, घर में आए बोले ऐसे में 100 मार्क्स, अरे बेटा आईएएस बनेगा, आपका पढ़ाई वहीं से शुरू, और पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 7 की किताब। ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक अप्रिसिएशन आपके लिए कि नहीं है, हाँ कुछ तो है मेरे अंदर, आप वो बोल सकते हैं कुछ तो है, बट वहाँ से स्टार्ट नहीं हो जाता कि आपने बस एक कोई ऐसे कहीं पर स्कूल में फर्स्ट आ गया तो आप आईएएस बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो पहले थिंग क्या है जो स्कूलिंग में आपको देखना होगा कि वेदर यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि इनको राइटिंग नहीं आती। इन द नॉर्मल क्लासेस जब हम स्टार्ट करते हैं क्लास से, जब हम टेस्ट लेते हैं, तो इवन बिलीव मी राइटिंग 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम होता है। एक पैराग्राफ राइटिंग दे देंगे तो पैराग्राफ नहीं लिख पाते। दोज आर लिसनिंग टू मी, आप लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं सर हम तो लिख जाएंगे, प्लीज़ ट्राई राइटिंग 1 पैराग्राफ, और उसमें आप उसको चेक करना कि कितना ग्रामर मिस्टेक्स हैं, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, या बस सेंटेंस लिख दिया है। और अपना करने के बाद किसी ऐसे को देना जिनको प्रॉपर वो चीज़ें आती होंगी, कि आप भी चेक करके बताइए, और देखना कि आपने जो अपने आप पे चेक किया उससे 4 गलतियाँ ज़्यादा निकाल के देंगे।
सो बहुत बेसिक लेवल में आपको सबसे पहले तो इस चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो अगर सर ये चीज़ तैयार करना है, ये रीडिंग राइटिंग को ही तैयार करना है, तो हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करेंगे? एंड देयर आई विल से तभी आपको यूपीएससी का ये हाउ कंपोनेंट समझ आएगा, जब ये रीडिंग राइटिंग इसको जब चालू करेंगे। इसीलिए ये पूरा का पूरा डिवाइड किस पे होता है? समथिंग कॉल्ड फाउंडेशन, वेयर द प्रिपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। यूपीएससी स्टार्ट विद द बेसिक, देन अल्टीमेटली यू विल मूव टुवर्ड द एडवांस, ठीक है, एंड देन यू विल मास्टर द थिंग्स। तो ये क्या आपका, ये तीन चीजें आपके स्किल सेट्स में इंक्लूड होती है। द बेसिक, इट ऑल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है, जो छोटे बच्चों की बुक है, छोटे क्लास की। सो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस आई विल टेक अदर वीडियोस, वहाँ पर हम आपको सिलेबस बताएंगे। बट अभी हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना होगा, बेसिक एनसीईआरटी से आपको यहाँ पर क्या करना है, रीडिंग करना है। गो स्लो विद द एनसीईआरटीज। गो स्लो विद द एनसीईआरटीज मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी का क्लास 6 का एनसीईआरटी उठाए और 1 महीना हो गया, सर बहुत स्लो है, आप ही ने कहा था। गो स्लो विद एनसीईआरटी मतलब 6th क्लास की एनसीईआरटी को आप 2 दिन में फिनिश कर लीजिए, और 3 डेज में, वैसे वो तो 1 दिन में जाता है, क्योंकि है ही कितने, वो छोटे स्कूल के बुक्स हैं। पर उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे आपकी क्या होगी, एक अप्रोच और आपका थिंकिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें लिखा ही कुछ ऐसा है, ठीक है। बहुत सारी थिंकिंग आपके अंदर ला कर देगा एनसीईआरटी। बहुत लोग सोचेंगे, बोलते हैं कि नहीं सर इसमें तो कुछ नहीं है, हम एडवांस बुक पढ़ेंगे उसी में सब कुछ है। गो विद द एडवांस बुक। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स आपने ऑलरेडी स्कूल्स में डेवलप किया है, गो डायरेक्टली विद द एडवांस बुक। बट क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन को हम पूरा कंप्लीट वे में एक पैकेज बने, तो कुछ ही एनसीईआरटी से बहुत सारी पढ़नी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़नी है। स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। अच्छा, ये तो चालू होता है। इसके साथ साथ कई लोग आते हैं एंड दे से कि सर वो मैंने हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बोला अच्छा क्यों कर दिया स्टार्ट? नहीं सर वो तो पढ़ना पड़ता है ना यूपीएससी में। तो आप हिंदू ऑन द फर्स्ट मंथ, जब आपको एनसीईआरटी का आपने क्लास 6 का नहीं देखा है, आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं समझ रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द बेसिक प्रिपरेशन, टेक आउट द एनसीईआरटीज, रीड द एनसीईआरटीज फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। कुछ पढ़ो आप पहले, उस चीज़ों पे सिंक हो, फिर आप हिंदू पढ़ने आओ, आपका उस पेपर में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी करंट इवेंट्स होते हैं, कोई भी अफेयर्स हो रहे हैं, उसका एक बेस है, और उसका बेस कहाँ है, यही बेसिक्स में दिखेगा। कोई भी क्वेश्चंस आए यूपीएससी में आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक से सिंक होते हैं। करंट अफेयर आर सिंक विद द बेसिक्स। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के भी करंट अफेयर बन जाता है, ठीक है। करंट अफेयर को भी हमने 2 चीज़ों में क्लब करेंगे, जब हम आपके साथ डील करेंगे तो वहाँ पर हमने भी करंट अफेयर को 2 अलग अलग सेक्शन में रखा हुआ है। एक होता है इशू एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर, जो कि मेंस में रिक्वायर्ड होता है, फ्रॉम डायरेक्टली क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स। और एक होता है आपका इशू बेस्ड करंट अफेयर, उसमें एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है कि हाँ कुछ इवेंट्स हैं, और इवेंट बेस्ड करंट अफेयर बोल सकते हैं उसको, इशू बेस्ड नहीं, कुछ एक इवेंट है और उस इवेंट को ही जानना है बस आपको, उसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है। सच टाइप ऑफ करंट अफेयर मोस्टली कम इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में वैसे करंट अफेयर आते हैं। सम ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट भी ऐसे कुछ हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सो जैसे कोरोना वायरस आया, तो अब ये तो क्या है, इसका कोई इशू भी है, इसको तो कंप्लीट एनालिसिस भी करना होगा। बट अगर ये वायरस बहुत पहले खत्म हो जाता, और यू कैन टॉक अबाउट द जो आपके वैक्सीन, वो जो मेडिसिन बनाया किसने, DRDO ने, ठीक है, 2-deoxyग्लूकोज 2DG, तो वो क्या है, वो खाली एक इवेंट है कि हाँ एक मेडिसिन बना है, तो यू शुड नो अबाउट द मेडिसिन एंड इट्स वर्किंग। अब उसको एनालिसिस नहीं करना है, बट कोरोना वायरस का इम्पैक्ट एनालिसिस करना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक था। सो इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल एरिना, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इन द रूरल इंडिया। तो ये क्या होता है, अलग अलग तरीके से हमको करंट अफेयर को डील करना होता है। सो ये सारी चीज़ आपको तभी समझ आएंगे वंस यू आर गुड विद द बेसिक्स। सो ऑलवेज स्टार्ट प्रिपरेशन विद द बेसिक, डायरेक्टली डोंट जंप इनटू द एडवांस बुक प्लीज़, ठीक है। और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ठीक हो जाएगा। एंड ये एक सब कुछ एक साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा एक फेस चाहिए इसके लिए, ये काफ़ी जल्दी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। देन वंस यू विल लर्न द एनसीईआरटीज, और उसको सिर्फ लर्न करने का तरीका क्या है, तो यहाँ से तो आप एक गुरु मंत्र बोलते हैं वैसे लिख लीजिए कि जो भी पढ़ेंगे उसे हम लिखेंगे। वॉट एवर आई विल रीड आई विल राइट। रीडिंग, अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हैं किसी चीज़ को,
सो यू विल गेट द नॉलेज, आपको मिल तो जाएगा, जो अभी उसमें जो लिखे हुआ आपको आएगा, यहाँ पर जाएगा ब्रेन पे, बट दैट वुड बी इन योर STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, 2 से 3 दिन बाद आप उसको भूल जाते हैं। सक्सेसिव रिविजन करेंगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपका क्या होगा, विद सक्सेसिव रिविजन यू कैन कन्वर्ट दो शॉर्ट टर्म इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। बट रीडिंग एंड राइटिंग अगर आप दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से थोड़ा सा तो आगे जाएगा, ठीक है। एंड विद प्रैक्टिस यू विल टेक इट टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर आपने 1-2 रिवीजन किया और राइटिंग स्किल्स वहाँ पर कर लिया, उसके ऊपर 3-4 आंसर्स लिख लिए, देन अल्टीमेटली दैट थिंग्स कम्स अंडर द सबकॉन्शियस माइंड। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा। कभी भी आपके पास वो क्वेश्चन आएगा, आपको वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से उसको आपने पढ़ा था, वो सारा चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको पता नहीं कि मेरे को ये आता है, बट वंस यू विल स्टार्ट सीइंग द थिंग्स, आपको तुरंत क्या होगा, सारे चीज़ इन प्लेस हो जाते हैं। और यही पर क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि सर प्रिपरेशन में अभी ये छूट गया, वो छूट गया, तो सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, वो ये क्या होता है कि आपके पास जब भी आप कुछ नया कंपोनेंट पढ़ेंगे तो वो आपके शॉर्ट टर्म में जाते जाएगा, पर आपने बहुत सारी चीज़ों को वापस फीड कर लिया अपने LTM में फीड कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, तो आपको ये लगता है कि वो मेरे को याद ही नहीं है। और वही एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है प्रिपरेशन की, कि आपको ये लगता है कि मुझे आता नहीं, और आप जब एग्जाम का पेपर देखते हो तो बोलते हैं यार ये तो इतना आसान आया था, काश मैं रिवीजन कर लिया होता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस कंपोनेंट को आप पढ़े होते हैं, ठीक है। तो रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो बेसिक से आपका एडवांस जाएंगे, दैट इज आपका जो जितना भी चीज़ आपने बेसिक में लर्न किया है, दैट विल हेल्प यू रीड द एडवांस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिपिन चंद्रा की बुक उठाई, या आप हो सकता है कोई एडवांस बुक उठा रहे हैं हिस्ट्री की, क्लियर है, सो द बुक विल स्टार्ट विद द कुछ भी 1-2 लाइन से स्टार्ट करेंगे। दे विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे विल टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स, ठीक है, वो इस तरह से वर्ड यूज़ करेंगे। इन 2 साल पहले का अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे, देयर द वर्ड कम द मास एक्सटिंक्शन, 6th मास एक्सटिंक्शन, और वो नोवेयर इन द न्यूज़पेपर में आपको कहीं नहीं दिखता 6th मास एक्सटिंक्शन, उस पूरे ईयर्स में हिंदू में तो कभी भी नहीं दिखा। बट अल्टीमेटली वो मास एक्सटिंक्शन वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, बायो की बुक्स में लिखा हुआ है, क्लास 12th की, कि किस तरह से पूरा का पूरा लाइफ फॉर्म खत्म हो रहा है, एंड अभी जो चल रहा है उसको 6th मास एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो कुछ वर्ड्स ही ऐसे हैं जो आपको कहाँ समझ आएंगे, बेसिक से। बेसिक रीडिंग धीरे धीरे आपको क्या करेगा, उस पर सोच डेवलप करके देगा। NCERT आपकी थिंकिंग बेस को बहुत ज़्यादा जनरेट करके देगा कि आपको कैसे सोचना है, किस तरह से सोचना है। NCERT आस्क यू द क्वेश्चंस, वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं और खुद भी उसका आंसर लिखते हैं। तो वो जो अप्रोच है टू स्टार्ट प्रिपरेशन, टू स्टार्ट स्टडिंग, वो रिक्वायर्ड होगा आपको कहाँ से, जो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक रीडिंग से। एंड वंस यू आर गुड विद द बेसिक, यू विल मूव टुवर्ड द एडवांस, ठीक है। अब एडवांस में जाने की बात कर रहे हैं, मतलब नाउ अब आपने क्या किया कि एक आपका अप्रोच बन गया पढ़ने का। रीडिंग NCERT आप एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम में पढ़िए, 2 महीने में मुझे खत्म करना है, 3 महीने में खत्म करना है। इफ़ यू मेक द टाइम लाइन फॉर योर सेल्फ, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, आपकी स्टडी के ऊपर आपकी हैबिट बनने लगेगी। कंप्लीटिंग द NCERT इन द 45 डेज और द 2 मंथ्स और द 3 मंथ्स, आप क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, आप सिटिंग कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, स्टडी टेबल पे बैठना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो टेबल में बैठने का है। आज जितने छोटे कुर्सियों में बैठ कर अपने आप को रगड़ोगे, कल आपकी कुर्सी भी उतनी ही बड़ी है, ठीक है। तो आज तो आपको क्या करना होगा, बैठना ही पड़ेगा, ये बैठने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप तभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, कई लोग बोलेंगे सर मैं तो चल के पढ़ता हूँ, अरे ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फनी थिंग, ठीक है, आप चल के पढ़िए, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप बैठ के पढ़ो या चल के पढ़ो, पर चलते चलते तो आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, तो बैठना तो पड़ेगा ही अल्टीमेटली। सो सिटिंग का हैबिट आपका जनरेट होगा। नंबर 2, लॉन्जिविटीज़ आएगी आपके अंदर। लॉन्जिविटी इन टर्म्स ऑफ स्टडी फॉर द नंबर ऑफ आवर्स। कई लोग होते हैं सर 1 घंटे में मेरा दिमाग काम नहीं करता, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द होल डे स्टडीज़। आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने लगोगे। इट इज़ नॉट, उसमें भी ये डिस्कशन होगा सर कि 14 घंटे रोज़ पढ़ने पड़ते हैं या 12 घंटे रोज़ पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ना उतना पड़ता है जितना आपका लेवल है। कुछ लोग 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 5 भी पढ़ लेते हैं, पर पढ़ते सब है। कोई ये बोल दे कि बिना पढ़े निकाल रहे हैं, वो गलत है। वो आपके लेवल पर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं। एंड द पॉलिशिंग विल रिक्वायर टाइम। आप 1 दिन 2 दिन पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप 1 साल में 2 साल की मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, डेफिनेटली आपने ज़्यादा पॉलिश किया खुद को। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन,
ठीक है, स्मार्ट वर्क्स अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क, वो दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन जब वो चीज़ों को आप यहाँ से सीखेंगे देन आप एडवांस पे काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। एनसीईआरटी में छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, 2 ढाई घंटे भी नहीं लगते, 1 घंटे लगेंगे, तो काफ़ी अच्छे हैं। पर जब एडवांस बुक में आएंगे तो उसके चैप्टर्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर उसके हिसाब से बैठना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया और इन बिटवीन 4 लाइन के बाद चलो अभी तो पानी पी लेते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, चलो अभी तो चाय बना लेते हैं, तो एक चैप्टर में 6 घंटे लगा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू, अभी इसलिए होता है कि बेसिक से आप स्टार्ट करते हैं, अपने ब्रेन को क्या करते हैं, एग्जाम के साथ सिंक करते हैं और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो मेक श्योर, पहली बात है कि आप एनसीईआरटीज, यू आर गोइंग विद द एनसीईआरटीज, कौन कौन सी पढ़नी है हम बताएंगे आपको बुक लिस्ट के साथ, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियोज़, और उसमें हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन के बाद कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, और ऑल्सो जब सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी साथ साथ आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाद आप जाएंगे एडवांस रीडिंग्स पे, एडवांस बुक्स पे प्रिपरेशन पे, एंड एडवांस विल नॉट ओनली इंक्लूड द बुक रीडिंग और मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द बुक। यहाँ पर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, समथिंग कॉल्ड सिनॉप्सिस राइटिंग करेंगे। आई विल टीच यू कि किस तरह से किया जाता है, नोट्स मेकिंग भी कैसा होगा वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। सो एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, इस एडवांस रीडिंग पे जाएंगे, पर यहाँ पर अलॉन्ग विद दिस नोट्स एंड दिस नोट्स, इनको सिंक करते हुए आपको क्या करना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे इनिशियल डेज से ही करना। वंस यू आर डन विद द एनसीईआरटीज, द सम बेसिक रीडिंग्स इन द 4th month और द 5th month, क्योंकि पहले दिन से तो आप आंसर नहीं लिख सकते ना, सो 4th 5th month यू कैन हैव द आंसर राइटिंग्स, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, और इसके बाद वंस यू आर गोइंग इन द मास्टर लेवल्स, जब एडवांस को काफ़ी अच्छे से आपने रिवीजन किया है कई बार, देन यहाँ पर क्या होता है, एड ऑन, यहाँ पर आप क्या करते हैं, कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड करते हैं कि हाँ हमने तो बुक्स में रीडिंग कर लिया, अब मास्टर्स मीन्स यू आर जस्ट सिंकिंग इट विद द करंट अफेयर्स, आप उसमें आंसर राइटिंग और अच्छे कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में आपने क्या किया, बहुत सारे टेक्निक्स बना रखे हैं, यू आर यूजिंग द डायग्राम्स इन अ गुड मैनर, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से पढ़ना है। मास्टर इज मोर अबाउट एग्जाम देना, प्रिपरेशन हो गया, अब उस एग्जाम को देना है, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन के नेचर क्या है उसको समझना, उस नेचर के हिसाब से आंसर कैसे लिखने हैं, सिलेबस को किस तरह से देखना है, कौन सा उसका एडवांस एरिया है जिसमें कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से ऐसे एरिया है जिसको यू कैन साइलेंटली स्किप द पार्ट, तो वो सारी चीज़ों को समझना, बट वो रिक्वायर्ड टाइम, इट विल रिक्वायर टाइम, आज पहले दिन से नहीं होता ये, ठीक है। पहले तो आपको इन दोनों में काफ़ी हार्ड वर्क पुट ऑन करना है, तभी जाकर क्या होगा, सीख पाओगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर ये तीनों लेवल को ही आपको पार करके आना है, आप सीधा यहाँ जंप मत कर जाना, मोस्टली यहाँ पे जंप कर जाते हैं और इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, and basic will cost you heavily. If you look into the prelims examination, there are about 40 to 45 questions from the basic books. लगभग 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं बेसिक के, एंड समटाइम वी से ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन में अगर हम यहाँ पर करंट अफेयर को हटा दें, ठीक है, तो ये सारे को हम लोग 2 फेज में देखते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक पार्ट, जिसको हम स्टैटिक बोल रहे हैं, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो क्या है आपके बुक में जो लिखा है वही है, दैट इज स्टैटिक, जिसमें कोई चेंज नहीं है। और एक पार्ट है डायनेमिक, दैट कीप मूविंग, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, करंट अफेयर जिसमें सिंक होता है। सो स्टैटिक एंड डायनेमिक का रेशियो हमेशा यूपीएससी बनाकर रखता है, ठीक है। एंड प्रीलिम्स लास्ट ईयर काफ़ी चेंजेस हुआ है प्रीलिम्स में, अब मोर ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स, थोड़ा सा करंट अफेयर का वेटेज कम दिखा था लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में, बट है अभी भी, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो एरिया बढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज। अर्लियर एग्रीकल्चर का काफ़ी बेसिक्स पूछा जाता था, बट लास्ट ईयर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एडवांस किया गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बेसिक लेवल पे लेकर चले गए, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं स्टैटिक एंड डायनेमिक का एक अच्छा रेशियो है इन प्रीलिम्स एल से कि 50-50 अभी लेकर ही चलेंगे। लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर भी हम इसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं। बट मेंस में अगर आप देखते हैं तो पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 इज़ मोर ऑफ स्टैटिक, वहाँ पर थोड़ा सा आपका स्टैटिक चीज़ें हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यू कैन टॉक अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वहाँ पर आपका क्या है, सोशल इशूज़ इज बिट ऑफ डायनेमिक टॉपिक, वहाँ पर कोई जो करंट इशूज़ होंगे उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो मेजॉरिटी अभी भी वो ग्लोबलाइजेशन को ही पूछ रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि पेपर 1 जो है ये आपका थोड़ा सा बिट ऑफ स्टैटिक नेचर का है, ठीक है। सो ये पेपर का आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से प्रीलिम्स के साथ ही साथ हो सकता है, क्योंकि ऑल द सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर है वो सारे के सारे प्रीलिम्स में भी हैं एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पेपर 1 को आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का स्टैटिक नेचर का होता है। बट द पेपर 2 एंड पेपर 3
दिस आर द मोस्ट अप्लाइड पेपर। अप्लाइड पेपर मतलब आपने जो पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी तो आप पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में तो आपको पॉलिटी डायरेक्ट स्टैटिक आ रहा है, बट उसमें कौन से इश्यूज ज़्यादा हाईलाइटेड थे। फॉर एग्जाम्पल अभी अब सबसे हाईलाइटेड इश्यूज क्या था, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या है, अभी जो बंगाल इलेक्शन हुआ उस समय पर जो भी आपका इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से काम किया, कोरोना वायरस था, ठीक है, फिर आपका एक डिबेट चल रहा था लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड डिबेट इकोनॉमिक सेक्शन में पेपर 3 में। तो इस तरह से क्या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं जो कि आपका करंट अफेयर से सिंक होते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 एंड पेपर 3 इज बिट आपका देखेंगे तो इसका शिफ्ट जो है वो क्या किसके ऊपर है, करंट अफेयर के ऊपर है। दो वहाँ भी स्टैटिक्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टैटिक्स नहीं है, स्टैटिक वहाँ पर भी है, बट उसका शिफ्टिंग जो है वो थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर है, ठीक है। सो इन पेपर 2 यू विल हैव द सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, बिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नहीं है, गवर्नेंस इज द मेजर पार्ट। यू हैव सब्जेक्ट्स कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड, अभी इंटरनेशनल इशूज़ काफ़ी चल रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव द इंडियन पॉलिटी। तो उस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपका करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे से सिंकेज होना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 नॉट रिक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर, बट पेपर 2 रिक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, और सबसे डिफिकल्ट पेपर भी होता है इसमें, ठीक है। देन विल मूव टुवर्ड द पेपर 3, देयर वी हैव द इंडियन इकोनॉमी और द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एज सच, तो इकोनॉमी को हमको देखना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके साथ साथ देयर वी हैव द एनवायरमेंटल इशूज़, ठीक है, एनवायरमेंटल रिलेटेड स्टडीज़, वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो सारा का सारा क्या होता है, करंट अफेयर बेस्ड ही अभी रहा है पिछले कुछ सालों का। अगर नेचर देखेंगे इसका तो एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करंट अफेयर बेस्ड रहा है। इन इकोनॉमी में भी मोस्टली करंट अफेयर ही है। तो पेपर 3 इज़ अगेन अ करंट अफेयर बेस्ड पेपर, बट हाँ स्टैटिक के बिना आप उस करंट अफेयर को पढ़ ही नहीं सकते, सीधी बात है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो हाउ आरबीआई और द व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आरबीआई टेकिंग फॉर द बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है। अब आपको आपने आरबीआई के बारे में ही नहीं पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा, बैंकिंग रिफॉर्म ही नहीं पढ़ा है, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इंडिया व्हाट ऑल मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब कितने लोगों को हमने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर या आपका सेक्टर से जोड़ रखा है, बैंकिंग सेक्टर हो या छोटे मोटे जहाँ से आपको उनको पैसे मिल सकते हैं, तो वो सेक्टर से कितने लोगों को जोड़ा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। सो यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग ओनली व्हेन यू नो द बेसिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स को स्किप नहीं करना, डायरेक्ट एडवांस में घुस गया, करंट अफेयर से नोट्स बना लिए और चले गए एग्जाम देने, नहीं, आप बेसिक्स को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर पेपर 2 पेपर 3 इस तरह से, एंड देन कम्स द पेपर 4। पेपर 4 कॉल्ड एथिक्स। अब ये पेपर आपका क्या है, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का पेपर है, बट यहाँ पर क्या होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर होते हैं केस स्टडीज़। यहाँ पर वो कुछ केसेस देंगे एंड दे विल सी कि आप उस केसेस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। जर्नल केसेस होते हैं दैट यू आर एन ऑफिसर इन समवेयर, वहाँ पर कुछ इवेंट हो गया, उस इवेंट पे आपका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। और वो अप्रोच तभी आप जनरेट कर पाएंगे, तब आप उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। एक तो होता है कि सब्जेक्ट को पढ़ के उसका प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, पर आप जो जनरली जो डे टू डे चीज़ों को सीखेंगे अक्रॉस द पेपर जो सीखेंगे वो हेल्प करेगा टू राइट द केस स्टडीज़, कि वहाँ पर आपको किस तरह से जाना है। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द कोड ऑफ एथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीज़ों को सीखते हुए जब आप क्या करेंगे, केस स्टडीज़ पे अप्लाई करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो देखो जब आप पूरा का पूरा इस कंपोनेंट को आप देखते हैं तो आपको क्या देखना है कि आपको ये तीनों लेवल को अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर द बेसिक्स वेल, यू हैव टू प्रिपेयर द एडवांस वेल, एंड देन आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ योर पॉलिशिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा मतलब आपने सीखा है, अब आप उस अपने आप को कितना पॉलिश कर रहे हैं, दैट इज़ द मास्टरी यू अटेंड। कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इस बार पेपर में आने वाला है, ठीक है, तो वो होता है मास्टरी। बट आपका क्या होता है, इन दोनों के बाद ही इस पॉलिशिंग को आपको रिक्वायर्ड है। सो प्लीज़ पुट इन द हार्ड वर्क राइट फ्रॉम दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अब इस पर सेल्फ प्रिपरेशन करो या आप ये करो, ये आपकी चॉइस है। सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आप इस पर करते हैं तो क्या होता है, किसी ने उस चीज़ को किया है। आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में सभी सही हैं और सभी गलत हैं, या कोई गाइड है तो वो गलती हो गया वो सही होगा। इट इज़ अप टू कि आप किसको चुन रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी इट डजेंट मैटर कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हमेशा उस टीचर से पढ़ना जिसकी बात आपको समझ आती है। देयर आर एन नंबर ऑफ टीचर्स, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर हो सकता है उनकी बात आपको समझ नहीं आ रही हो, और एक दो होते हैं जिनकी बात आपको सीधे दिल पे जाती है, आपको समझ आती है उनकी बात।
जिनकी बातें समझ आती हैं उससे ज़्यादा सिंक होना बेटर है, बजाय उस टीचर से पढ़ना जिनकी बात समझ नहीं आ रही पर उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत एक एस्पेक्ट है, क्योंकि तभी आप ग्रो कर पाओगे। नहीं तो आप सुन के तो आ रहे हो, आपको बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप फिर उसको खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो और आप समझ, फिर आपको क्या हो रहा है, आपने जनरेट नहीं कर पाया है नॉलेज बेस को। तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ों को ध्यान रखना जब आप पढ़ते हैं और सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रॉपरली स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाई करनी है। इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप क्या कर गए, सीधा जंप कर गए। ठीक है, सो ये इतना कुछ है सिलेबस आई विल डील अलॉन्ग विद द बुक्स। ठीक है, कि सिलेबस क्या है और बुक्स लिस्ट के साथ साथ हम उसको डील करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या सोचना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। पर उसके साथ साथ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम कॉल्ड आरम। ठीक है, एक यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे सीजीपीएससी में, बहुत आपका नॉट सीजीपीएससी इन द छत्तीसगढ़ स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड भी था। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स आई डोंट नो दे क्लेम टू बी द यूपीएससी गिवर्स, वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो वो तो उनके ऊपर है। बट आई एम स्टार्टिंग विद द माई प्रोग्राम कॉल्ड द आरम, द कमेंसमेंट, एंड आई बिलीव इट टू बी द कमेंसमेंट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इसी पैटर्न पे ही चलने वाले हैं। सो आई विल नॉट जस्ट फिनिश द सिलेबस विथ यू। मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको जर्नल स्टडीज़ पढ़ाकर ख़त्म कर दूँ। आई विल टीच यू द आंसर राइटिंग वेरी वेल, कि आंसर राइटिंग पे हम फोकस करेंगे। आई विल फोकस ऑन द रीडिंग एंड थिंकिंग अप्रोच, लर्निंग बेस्ड। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को हम वहाँ पर क्लब कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइमलाइन के साथ हम चलेंगे। सो इसलिए हमने क्या किया है, एक टाइमलाइन भी आपके साथ पब्लिश किया है कि नंबर ऑफ क्लासेस फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, आफ्टर ईच सब्जेक्ट वी विल हैव द टेस्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ताकि वहाँ पर हम उस एस्पेक्ट्स को डील कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक स्टडीज़, एडवांस स्टडीज़, आई विल क्लब बोथ। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मास्टर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिस से उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो आरम विल हेल्प यू इन दिस एस्पेक्ट, आरम विल हेल्प यू हियर in the aptitude or the prelims part, it will help you in this answer writing part, जो मेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एंड ऑल्सो इन दिस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, अगर देखेंगे सो हाउ के लिए आपका क्या है, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल टीच यू कि किस तरह से चलना है। राइट फ्रॉम द विच ऑल बुक्स यू नीड टू रीड, आई विल गिव यू द बुक लिस्ट टू रीड, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर थिंग्स यू कैन रीड। कुछ नोट्स के साथ भी हम चलेंगे, हैंडआउट्स के साथ भी चलेंगे, तो हर एक एस्पेक्ट्स को हम वहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आपको क्या मिले, एक होलिस्टिक डायमेंशन में प्रिपरेशन हो एंड इन द राइट अप्रोच के साथ हो। सो 1.5 years ऑफ फाउंडेशन विल गिव यू एज, बहुत ज़्यादा आपको एक एज देगा जब उसको आप फर्दर आगे लेकर चलना चाहेंगे तो। ठीक है, और जो ऑलरेडी इसमें 1 साल में ही करना चाहते हैं सो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर होगा। ठीक है, बट उसके साथ ये होता है कि देखो, आप क्लासेस के साथ साथ अगर आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो 1 year में अचीवेबल है। बट अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर सिर्फ क्लास से ही जो हो रहा है हम उसको ही करते रहेंगे, जब फिर 1 year इज़ बिट शॉर्टर, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना, आपको चीज़ों को सिखाना, ये सारी चीज़ें हम टाइमिंग यहाँ पर दे रहे हैं। पर अगर आप घर पे जाके इस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू योरसेल्फ आर नॉट डूइंग द वर्क कि नहीं यहाँ से ही हो जाएगा, दैट मीन्स नन ऑफ द कोचिंग इन द कंट्री, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कोचिंग नहीं बना है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई पास करा दे। दे कैन गाइड यू वेल, दे कैन गिव यू द कंटेंट्स, बट वो कंटेंट अल्टीमेटली प्रोसेस किसको करना है, आपको ही करना है। तो प्रोसेसिंग पार्ट रिक्वायर्ड यू। ठीक है, और यू कंपोनेंट कहाँ से दिखेगा, ये वाई, इस वाई को अपने यू में कंपोनेंट में जोड़ लेना कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अलग चीज़ें हैं, तो मेरे को करना ही करना है इस चीज़ को, जो मुझे बोला गया है, जो मुझे टास्क दिया गया है, आई हैव टू फिनिश दैट टास्क। आई विल गिव यू द नंबर ऑफ टास्क, बहुत सारे देंगे। ठीक है, ये हाथ जो है, ये हाथ लाल हो जाएंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे इस पर, और जब जो फिंगर्स होंगे ना उससे पेन इतना पकड़वाएंगे आपको कि इस फिंगर्स में आपके क्या दिखेंगे, उस पेन के इम्प्रिंट्स दिखने लगेंगे। तो मेक श्योर उस तरह से आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अब जब इतना सारा चीज़ें, तो एक डर का माहौल बन जाता है, बेवजह का डर का माहौल कि सर यार इतना मेहनत करना है, हम नहीं करेंगे। इन्जॉय द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट है। ठीक है, आपको जब सीखने की एक चाहत होगी ना, तो आप इस चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्जॉय करने लगोगे कि यार ये भी था, ऐसा भी है, मुझे ये भी चीज़ें मिल रही है, आगे चल के ऐसा होगा। यू कैन प्रिडिक्ट द वर्ल्ड 100 years आफ्टर द वर्ल्ड, पहले का प्रिडिक्ट आप पढ़ के आ रहे हो, आपने प्रेजेंट वर्ल्ड को जीना सीखा है। यू विल एंजॉय द स्टडी, एकदम लाइवली, बहुत आपको लाइवली लगेगा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, अ जर्नी ऑफ स्टडी, द जर्नी ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि बहुत हार्ड है, रॉकेट साइंस है कि समझ ही नहीं आ रहा है। यू आर जस्ट रीडिंग द हिस्ट्री, देयर इज अ डिफाइंड पैटर्न इन द हिस्ट्री, उस पैटर्न को, उस थीम को समझ के पढ़ना है।
ठीक है, डोंट बम्बार्ड योरसेल्फ विद द फैक्चुअल नॉलेज कि सर वो भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था और ये भी हुआ था और मेरे को कुछ याद नहीं है, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट द वे ऑफ रीडिंग द हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट विद थीमेटिक एक्सप्रेशन। उसे पूरा थीम है कि हाँ किस तरह से वो सब्जेक्ट बना है, इवॉल्व हुआ है, उस सब्जेक्ट में कैसे आपका अदर डेवलपमेंट्स को आप समझ सकते हैं, अपनी सोसाइटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे हिस्ट्री के साथ बना था। इंडियन जोग्राफी है, वर्ल्ड जोग्राफी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हुए प्रोसेस के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ चेयरफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड बिलीव योर सेल्फ आउट ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द मार्केट और इन द ग्राउंड और कहीं पर भी आप देखें, ओनली द एम्बिशियस वन, दोज आर लिसनिंग टू मी एंड दोज हु वांट टू परस्यू, मैं ये बोलूँगा अमंग ऑल द पर्सन्स और ऑल द इंडिविजुअल्स यू आर द एम्बिशियस वन। हाँ, आप जो सुन रहे हैं मुझे, आपके अंदर एक एम्बिशन है, उस एम्बिशन को मरने मत देना यार। ठीक है, कहीं खो मत जाना, अपने उस एम्बिशन को पकड़ के रखना है, क्योंकि एम्बिशन ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही विज़न नहीं मिलती सबको, कभी कभार ही आती है और जब वो आ गया है ना उसको पूरा करना है। और कैसे करोगे पूरा, उसके लिए मेहनत भी करेंगे और उसको इन्जॉय करेंगे। अगर जितना इन्जॉय करके पढ़ोगे, जितना एम्बिशन को अपने अंदर लेके चलोगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। बट अगर उस एम्बिशन को खो दोगे, इन्जॉय करना बंद कर दोगे, टेक दिस एग्जाम एज अ बर्डन ऑन योर सेल्फ, अल्टीमेटली आप कोई एग्ज़ाम का जो प्रेशर वो पुश कर देगा नीचे की ओर। ठीक है, सो बाबा रणछोड़ दास ने ही कहा था कि इसको क्या करना है, ये बहुत कमज़ोर है, इसको बेवकूफ़ बना के रखना है। ठीक है, इन द फेमस मूवी 3 Idiots, समटाइम्स दोज वर्ड्स वर्क। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको बेवकूफ़ बना के ही रखना है कि सिलेबस तो छोटा ही है यार, बस 500 टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा सिलेबस है, 500 टॉपिक है, 600 टॉपिक है, कुछ नहीं। अगर यू आर गुड विद दिस थिंग कि आउट ऑफ 500 टॉपिक्स डे 1 पे मैंने एक टॉपिक तो कर लिया है, अब 499 ही बचे हैं, रादर देन से 499 टॉपिक्स और बचे हैं। एंड जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से आपको सोचना है, सीधा ऑलवेज सीधा ग्रीनर साइड। ठीक है, ऑलवेज सीधा पॉजिटिव साइड्स ऑफ द एग्जामिनेशन, नॉट द नेगेटिव साइड, बिकॉज एग्जाम में 700-800 सीट्स होते हैं एंड द गिवर्स आर अराउंड 10 lakhs। सो द फेलियर स्टोरीज, तो आपका क्या होता है, 10 लाख में से 9,99,000 ऐसा होगा फेलियर स्टोरीज, बट देयर आर ओनली 800 स्टोरीज या 700 स्टोरीज जो आपका क्या होगा, एक सक्सेस स्टोरी कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन क्लियरिंग। बट ऐसा नहीं कि बस वही सक्सेस है, और भी लोग होते हैं। ठीक है, तो वहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखना हमेशा, यार उसका हो गया, अरे उसका हो गया। मोटिवेट, गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द पीपल्स रेदर देन की जो कंप्लेन कर रहे हैं। एक दो ने तो वीडियो भी बना दिया है, मैं क्यों फेल हुआ, मैं कैसे फेल हुआ, मैं कहाँ फेल हुआ, तो उसको देखना ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर वो ये बोल रहा है कि उसमें कुछ गलतियों को उसने नोटिस करके दिया है कि ये चीज़ें हैं, तो उसको आप ले लो कि नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं करेंगे। जब आप इस तरह से चीज़ों को उठाना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आप मान के चलो आप बहुत आगे चले जाएंगे। द 2-6 मंथ या 7 मंथ का 2 times अगर आप अपने को ग्राइंडिंग करते हैं, द 2 grindings ऑफ 6 to 7 months, मतलब 2 ग्राइंडिंग 6 मंथ का, इट विल टेक यू अराउंड 12 to 14 months। कहीं पर अपने आप को बैठ के अच्छे से ग्राइंड करते हैं, बिलीव मी यू विल ट्रेवल द एक्स्ट्रा माइल्स एंड एक्स्ट्रा माइल इज ऑलवेज लेस क्राउडेड। ठीक है, तो आप उस एक्स्ट्रा माइल को अचीव करना है, तो गिव योर सेल्फ टाइम एंड प्रिपेयर वेल। ठीक है, एंड प्लीज़ इस चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से प्लान करके रखना। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को जब आप कवर करते हैं, सो प्लीज़ एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताना भूल गया, यहाँ पे जस्ट मेंशन दिस इज़ योर टारगेट। सो प्लीज़ मेक द टारगेट्स एंड अचीवेबल टारगेट्स, कि हाँ मैं 7 दिन में ये चीज़ को पढ़ना है, तो 7 दिन को भी आप क्या करेंगे, स्मॉल टारगेट्स में सिंक करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल का पूरा बना लिया एक बार में। वीकली टारगेट्स, बी रेडी विद द वीकली टारगेट्स, रेडी विद द 15-day टारगेट्स। 1 साल का नहीं बनाना, 1 साल का आपका विजन है कि वो मेरे को करना है, पर आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उसको कंप्लीट करिए एंड कंप्लीट करने के बाद खुद के साथ सेलिब्रेट करिए। पर इतना सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, अब सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन शुड बी कि हाँ एक सब्जेक्ट हो गया, आपने 15 days का टारगेट पूरा किया है, सो यू कैन हैव 1 day ऑफ, यू कैन हैव 1 part ऑफ द डे ऑफ, वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी रिक्वायर्ड है कि ऑन एंड ऑफ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट से ही सीखा हुआ है चीज़।
ठीक है, वहाँ पर भी गांधी जी ऑन एंड ऑफ रखे थे। लाइफ में भी आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ होना चाहिए। एक पेस आएगा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, फिर अचानक से आपको कुछ 1-2 दिन लगेगा अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि आप थक जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ मेंटेन द ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, बट द ऑन एंड ऑफ शुड नॉट बी वेरी फ्रिक्वेंट। ऑन स्टडी फॉर 2 hours ऑफ, on study for a week or the 10 days, then off for 1 part of the day, then again start, because आपका एग्जाम को आपको इन लिमिटेड टाइम फ्रेम पे ही अचीव करना है। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम फ्रेम पे नहीं करना है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि बी रेडी विद द टारगेट्स शुड बी वेरी स्मॉल टारगेट्स, बी रेडी विद द गोल, दैट गोल इज़ योर अल्टीमेट थिंग्स, जो आपको अचीव करना है। तो वो गोल आपका क्या आपको समझ आ चुका है। टारगेट्स, वीकली टारगेट्स और द फोर्टनाइट टारगेट्स, उसको आप बनाकर सब्जेक्ट स्पेसिफिक चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, जो हम क्लासेस पे डिलीवर करेंगे उसके साथ साथ आप अपना भी बना सकते हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उस टारगेट को लेकर चल सकते हैं, उसके हिसाब से ही अपने मेन गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके चारों पेपर्स, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, बट ये चारों पेपर्स में आपको क्या करना होगा, ये टारगेट तो आप सेट करिए आज। इसके साथ साथ जितने भी पेपर्स हुए, टेक फ्रॉम द 2014 के बाद जो भी पेपर हुआ है यूपीएससी का, प्रीलिम्स एंड बोथ मेंस, उसको आप पेपर अरेंज करिए एंड गो थ्रू द पेपर वंस इन द फर्स्ट वीक। गो थ्रू द पेपर्स, सीखिए पहले वहाँ से कि क्या पूछा है, किस तरह से पूछा है, कैसे पेपर्स के नेचर हैं। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे आपको क्या होगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आनी स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अब वो उसमें भी खुश मत हो जाना कि यार ये तो यही पूछा है, मुझसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे बन जाएगा तो आंसर लिख के ट्राई कर लेना उसी समय। ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अब पहले उस चीज़ को, प्रोसेस को करने के लिए पहले एनालिसिस करिए, एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रीलिम्स पेपर, पास्ट ईयर मेंस पेपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करना है और उसके बाद अपने प्रिपरेशन को जो टारगेट्स वाइज स्टार्ट करना है। ठीक है, सो देयर शुड बी सम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जैसे कि आप राइट स्टार्ट विद द इंडियन ज्योग्राफी, गो विद द इंडियन हिस्ट्री, देन मूव टुवर्ड द अदर सब्जेक्ट, दिस 2 सब्जेक्ट फॉर्म द बेसिक, देन गो विद द इंडियन पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड आपका एक है जनरल साइंस। तो ये सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से किया हुए हैं, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो इससे क्या होगा, आपका बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कैसा भी सब्जेक्ट आ जाए, यू आर नाउ रेडी टू रीड एवरीथिंग। फिर न्यूज़पेपर में भी पूछा जाए, आपको हर एक चीज़ समझ आने लगेगा। बट द कोर सब्जेक्ट शुड बी वेरी गुड। ठीक है, इन सिलेबस पार्ट आई विल टॉक अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स, अबाउट द पेरिफेरी सब्जेक्ट्स, अबाउट द स्टैटिक करंट अफेयर, अबाउट द डायनेमिक करंट अफेयर्स। ये सारा का सारा इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट। सो प्लीज मेक श्योर दोज हु वांट टू टेक, दोज हु वांट टू रजिस्टर विथ मी, सो यू कैन हैव माई नंबर्स। ठीक है, वो आपके पास है इन द सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल ऑल्सो गिव द नंबर्स, यू कैन टॉक टू मी। Other way around, those who don't want to join, don't want to register, you can also call me. ठीक है, आप भी बात बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हाँ बस वो उनको ही हेल्प किया जाएगा जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से अप्रोच। बिकॉज आई वॉन्ट कि यहाँ पे स्पेशली इन छत्तीसगढ़ पीपल आर देयर दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बट समहाउ कुछ हर्डल्स होने के कारण वो कर नहीं पाते। दे आर सर्चिंग फॉर द क्लासेस, दे आर सर्चिंग फॉर सम थिंग्स, बट उनको मिल नहीं पाता एंड अल्टीमेटली वो दिल्ली जा नहीं सकते। ये भी उनके साथ एक इशू होता है, क्योंकि दिल्ली इज़ बिलीव टू बी द हब, बट ऐसा कोई हब नहीं है इंडिया पे। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से, पर ऐसा कोई हब बना के मत माइंड में रखना, कहीं भी रहकर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू जस्ट नीड द राइट मटेरियल एंड द राइट गाइडेंस, एंड आपका खुद का एक विल होना चाहिए, फिर आप कहीं भी जाकर आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इफ दिल्ली गिव्स यू द मैक्सिमम सिलेक्शन, देन दैट दिल्ली ऑल्सो गिव्स यू द मैक्सिमम रिजेक्शन, क्योंकि वहाँ 2 से 3 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सच्चाई है। एंड इन द स्मॉल स्टेट्स और स्मॉल कोई टाउन होगा, वहाँ पर 10 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक निकाल दिया, उसका रेशियो ज़्यादा है। तो ये तो आपका क्या है कि फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर्स के पीछे नहीं जाना है। अगर इस नंबर्स को और इस फिगर्स को ही समझते रह जाओगे तो प्रिपरेशन कब करोगे? ये सब में इन्वॉल्व रहोगे तो प्रिपरेशन कब करोगे? ठीक है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करिए अपने आप में से। ओके, सो आई एम जस्ट समिंग अप हियर कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एक बहुत ही डेस्टिन पाथ डिज़ाइन किया हमने अपने लिए कि हमको उस डेस्टिनी को अचीव करना है। आपके लिए भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और आप अपना खुद भी करेंगे। और उस पाथ में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं वो भी हमारे सामने पता होना चाहिए हमको कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं।
हियर वंस यू राइट, सो राइट अबाउट द चैलेंजेस यू विल फेस, कि आपके साथ कौन, आपको क्या लगता है कि कैसे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, और उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है वो भी हम उस पाथ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जब एक बार दौड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं। वंस विल स्टार्ट रनिंग सो विल फिनिश द लाइन, इन बिटवीन नहीं रुकेंगे। एंड इट इज़ द रूल ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ही सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो हर एक गेम का स्पोर्ट्स क्या है कि ऑलवेज फिनिश द लाइन। आप फर्स्ट आउट लास्ट आउट मतलब नहीं है, पर लाइन को फिनिश करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लाइफ में इस लाइन को हम फिनिश करेंगे वंस यू स्टार्ट। फर्स्ट आउट, सेकेंड आउट, लास्ट आउट, बाहर हो, डजेंट मैटर, पर प्रिपरेशन शुड बी इतना होना चाहिए कि आप लास्ट में कोई आपके ऊपर क्वेश्चन ना कर पाए, और कोई क्वेश्चन भी करे तो आपका दिल आपके ऊपर क्वेश्चन ना करे। यू शुड नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैंने नहीं प्रिपरेशन किया यार, कर लेता तो हो जाता, नहीं। योर हार्ट विल से आई हैव गिवन माई बेस्ट, यस आई हैव गिवन माई बेस्ट, एंड नहीं हो पाया। वो विद द एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस के साथ आपको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता वंस यू हैव द एक्सेप्टेड कि आपने क्या करा, निकालोगे। तो ठीक है, फिनिश द लाइन इन द प्रॉपर मैनर, प्रिपेयर वेल, एंड हियर आई से गेट सेट गो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।